Hi everyone, it's a beautiful Saturday and supposedly should be the last weekend of the lockdown period. Hopefully, fingers crossed. We don't know what steps government take and why they take, so we should not, criticize those steps. Let them do what they can, let us do what we can. So today in the morning when I woke up, I felt a different kind of energy. And I felt that today is the day I should make a video. And today is gonna be a good day. So let's make a video. But then I was out of content. So what did I do? I actually did nothing. But I followed what I always preach. I kept a positive approach to the day. I had a good workout. I had good meals. And then I got tagged in a picture, and then someone sent me a picture, and then I went through that tag to another picture, and there were a lot of content that I could make a video on today. So the first and foremost thing that I want to say is my story I uploaded yesterday, and the story says that whatever small things that you do in your day-to-day routine makes or changes your life. Those small things could be how you spend your morning. That's how I spend my morning today. Thinking positive thoughts, expecting something good to happen. How I talk to myself. I make sure that I talk to myself each and every day, whether it be for a minute, whether it be for 10 minutes, whether it be for 30 minutes, or whether it be for as long as I can. But I always make sure that I talk to myself no matter however busy or however tired I am. And I speak good things to myself. I tell myself that this is possible or something good is there. So I always talk good to myself. Okay, what impacts your daily routine or what impacts your life is what you read and watch daily. So make sure that you read and watch good things. And you know what, since the time I have started ignoring and filtering those negative vibes and bad things, I only read good stuff. And guess what, today since morning I have not read anything negative, because I just cannot absorb negativity right now. I am so much filled with a lot of positivity these days that whatever negative comes to me, I just filter it out, and it happens naturally now. So try this, try and filter out the negative thoughts, because everyone in this world get negative thoughts, everyone. But there are very few people who get over them, who don't let that bother their mind and their day and their mood, and they move it. हाँ चलो कोई बात नहीं, हो गया, जाने दो, आगे बढ़ो, ये हो गया, कोई बात नहीं, जाने दो, आगे बढ़ो. So do not let that negativity kill your vibe, kill your positivity. Stay positive and things will turn out in a good way. Then whom you share your energy with, make sure that you are not surrounded by all the cribbers or negative people, because those people have a habit to cling on to positive people, to people who are strong. There are tons of people who come to me for help, who come to me always crying. No matter how many times I help them, they are always gonna come to me crying. And whenever you help them, you are giving them your positivity and you are taking back the negativity. So that negativity, though you have ample of positivity, I don't say no, don't not share positivity. But remember, those negative vibes are gonna impact your day, your mood, and your life. So make sure that you surround your people with positive thinkers, strong people, and you also pass on positivity to those negative people and try and turn them into positive people. Because if these people keep talking negative and keep creeping around you, you are also going to become one of them. So make sure that the people you share your energy with are of the same wavelength, are of the same vibe, and try and create good vibe around yourself. It will always help. Positive thinkers, good vibe people are very rare to find. So if you find them, do not keep on looking for options. And last but not the least, who has access to you. Now I have learned this, that people, whenever I try to talk to them, my friends or my family, and they will reply late. They will hang up on the call saying I'm busy. Oh, I will give you a call later. I will talk to you later. Whereas I have always made sure that I give people time and response as fast as possible. But I have
I have filtered this notion about myself, and now what I do is I am not busy. Remember, I am never busy for anyone, but I am selectively available. I am gonna be selectively available from now on, is what I have decided. Not to give access to everyone and anyone to me, because again, those negative vibes, those cribbing people are gonna cling on to you, and they will try to extract the positivity out of you and leave you with a lot of negative things. Okay, I saw a video somewhere where a guy is trying to help everyone who is sad, and he hugs them. So if, for an example, that person whom he hugs is a little black here, so when he hugs, that black transfers to him. That means that negativity he has absorbed, and he has given him the positivity. Then he moves further. The other guy, both hands are black, and when he hugs that guy, the both of his hands become good, and this guy's hand become the black one. So what I absorb from this is that the more people I help, the more negativity I attract. So I want to stay away from it, because I'm also a human being after all. I also need someone. Maybe I don't need someone. I can be that one for me. But then if I keep on solving problems of the people, who's going to solve my problem? Because I have to stand for myself. So rather than always helping people, teach them how to help themselves. It might sound a little rude, it might sound a little rough, it might sound a little straightforward. They might not talk to you, they might get upset, but that's the only solution. You cannot be there for everyone and anyone. You cannot make everyone happy, okay? Because you are not an ice cream seller. Nothing against the ice cream sellers, but you are not the ice cream seller. So you cannot make everyone happy, and everyone's happiness is not your responsibility. Okay, it's everyone's responsibility to be happy. Your responsibility is to be happy yourself, and then ultimately, if everyone is happy on their own, then there will be no sorrows around. Okay, I hope you get my point here. So these are all the small points which change your life. So make sure you do it in your daily routine. Now, after that, one of my very good friend, she is very beautiful from the heart, in and out. She's very beautiful from the outside as well as in the inside. So she tagged me this, and then when I replied to her, she felt very enlightened, I would say, or she thought that it was very good reply to that picture. So the picture is in context to what I said before, that nobody will tell you to set boundaries. Remember, nobody will ask you to set boundaries, because all the people around you want to benefit from your giving nature. Nobody will ask you to set boundaries, because everyone around you are very happy with your giving nature. आपके आजू बाजू जो लोग हैं, वो सब आपको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इतना रुके हुए हैं कि आप उनको, फॉर एन एग्जाम्पल, ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको कुछ सीरियसली मत लेना, लेकिन आप उनको 100 रुपए दोगे तो ऐसा नहीं बोलेगा, नहीं सर मेरे को तो 100 रुपए की जरूरत नहीं है, नहीं भाई मेरे को 100, आप मेरे को सिर्फ 75 रुपीज दो, आप मेरे को सिर्फ 55 रुपीज दो, नहीं, वो 100 ले लेगा, और नेक्स्ट टाइम आएगा, कभी भी आपको वो वापस भी नहीं करेगा पैसे, और नेक्स्ट टाइम आएगा वो और मांगेगा. सो उसका तो फिर उसमें चेक योर सेल्फ एंड स्लो डाउन, यू आर गिविंग टू मच. मतलब from what all of this quote I understood is that the givers never have that the givers always have to set the boundaries, because the takers never have the boundaries. जो भी लोग मांगने आते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं होती है, वो लोग मांगते ही जाते हैं. आप एक बार दोगे, दूसरी बार दोगे, तीसरी बार दोगे, कभी आप ही को स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी मांगना स्टॉप नहीं करेंगे. और आप स्टॉप करोगे तो वो किसी और के पास जाएगा, लेकिन वो कभी मांगना स्टॉप नहीं करेगा. सो द गिवर्स ऑलवेज हैव टू सेट अ बाउंड्री कि भाई मैं इतना ही हेल्प करूंगा जो मेरे को कुछ हार्म ना करे. मेरी एक लिमिट है, उसके ऊपर ही मैं हेल्प कर सकता हूं. जैसे एक अभी एग्जांपल दूंगा, लोग इसमें भी बुरा ना माने और इसको पॉजिटिवली ले. अभी सारे फिटनेस प्रोफेशनल्स हेल्प करने की ट्राई कर रहे हैं अपने अपने क्लाइंट्स को, कैसे भी करके, वर्कआउट्स भेज के, डाइट्स भेज के, उनकी क्वेरीज फोन पे सॉल्व करके, उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग देके. बट आई बिलीव दैट 80 to 90% ऑफ दिस क्लाइंट्स आर टेकिंग a due advantage, I would say, of the trainers and not even asking कि सर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, या मैडम आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, क्या मैं आपको हेल्प कर सकता हूं.
मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप उनको पैसे दो या पैसे पैसे पूछो कि सर आपकी फीस कितनी है। अगर आप पूछोगे देन दैट विल बी वेरी गुड, वेरी जेन्युइन, वेरी गुड अप्रोच कि सर आप मुझे हेल्प कर रहे हो तो मैं आपको फीस देना चाहती हूँ या चाहता हूँ। दैट इज अ वेरी गुड अप्रोच, बिकॉज अभी ये टाइम में भी अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे या इवन अगर कोई पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव बंदा हॉस्पिटल जाएगा तो वो भी पहले बिल चुकाएगा, फिर ही उसको ट्रीटमेंट मिलेगी। लेकिन बहुत सारे फिटनेस प्रोफेशनल्स टिप्स दे रहे हैं, वर्कआउट्स दे रहे हैं, डाइट्स दे रहे हैं, कंसल्टेशंस कर रहे हैं, एंड पीपल एक्सपेक्ट इट टू हैपन फ्री ऑफ कॉस्ट। यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज उनके घर में भी ब्रेड पैसे से ही आता है जो आपके घर में आता है, ठीक है। सो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। आप उनको पैसे ऑफर नहीं करना चाहते हो, आपकी भी अगर आपके भी हाथ तंग है तो आप उनको वो मत ऑफर करो, लेकिन आप उनको कुछ तो सामने एटलीस्ट एक पूछ तो सकते हो ना कि सर आपके घर में कोई तकलीफ है, मैं आपको कैसे कुछ करके हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। 99% कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि सर मेरे, अगर उनके घर में तकलीफ भी होगी तो वैसा नहीं बोलेगा नहीं सर आप मेरे घर पे गेहूं आटा ये सब दे के जाओ। कोई भी नहीं बोलेगा। कोई रेयरली जो बहुत ज्यादा तकलीफ में होगा वो शायद आपके पास थोड़ा सा कुछ मांग लेगा, और अगर आप उसको पहुंचा दोगे तो बंदे को भी खुशी होगी और वो खुशी खुशी आपको हेल्प करेगा। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल के don't take due advantage, because then this is only giving. There is no coming back. The person don't expect anything in return, that is for sure, but then only taking is not how it's done. आप अपने घर में बैठे हो, वो बंदा कितनी मेहनत से आपके वर्कआउट्स बना रहा है, वो बंदा कितनी मेहनत से आपके डाइट प्लान्स बना रहा है, वो बंदा कितनी मेहनत से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इतने टेंशन वाले टाइम में आपको हेल्प करने की ट्राई कर रहे हैं, आपको हेल्थ और फिटनेस मैनेज करने की ट्राई कर रहे हैं, और आप उसको एक जेन्युइन सा क्वेश्चन या एक नॉमिनल सा क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते कि सर मैडम कुछ मदद जो मैं कर सकूं। आप जैसे बोलो आपको मॉनिटरी हेल्प चाहिए, अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो वो कर दो, मॉनिटरी हेल्प नहीं कर सकते कुछ और पहुंचा सकते हो तो वो कर दो। दिस इज जस्ट माई सजेशन, नोबडी शुड टेक इट रॉन्ग। प्लीज ट्रेनर्स लोग कोई पैसा नहीं मांगना ये सुन के, और ना कोई क्लाइंट ऐसा समझना कि मैं सबको बोल रहा हूँ कि पैसा दो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इफ दिस इज व्हाट आई बिलीव, दैट इफ अ पर्सन इज ट्राइंग टू हेल्प मी, आई विल ट्राई टू हेल्प हिम और हर बैक इन एनी वे पॉसिबल, जैसे भी मैं हेल्प कर सकूँ, नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी मॉनिटरी, ठीक है। और इसके बाद एक मेरे बहुत अजीज जो दोस्त हैं, मेरे क्लाइंट भी है, उन्होंने ये पिक्चर रखा था और आई रियली लव्ड इट, दैट देयर इज नथिंग बेटर देन एडवर्सिटी। एडवर्सिटी से अच्छा कुछ भी नहीं है, मतलब आपके डाउनफॉल से अच्छा कुछ भी नहीं है। अगर आपके बुरे दिन चल रहे हैं तो उसमें आपको हजारों सीख मिल सकती है, जैसे कि आप कुछ हार जाते हो, आपका दिल टूट जाता है किसी बात से, आप बहुत सारा नुकसान उठाते हो, ये सब में कुछ ना कुछ सीख होती है। अगर इसमें से आप कुछ ना कुछ सीख गए तो फिर आपका अगला मूव जो होगा सक्सेस की तरफ वो और भी बेटर हो जाएगा। सो रिमेंबर, इफ यू आर गोइंग थ्रू एडवर्सिटी, यू आर जस्ट बीइंग sown as a seed and you will grow better. You remember that, okay? Then I came across one of, again ये मेरे लाइन और लेंथ के ऊपर ही एक कोट आया मेरे सामने कि life is short, cut out the negativity, forget the gossips, say goodbye to people who don't care, but spend more time with the people who are always there, okay? उसके बाद मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने एक कोट रखा था, सो जस्ट सेइंग दिस ऑन अ लाइटर नोट, डोंट टेक इट सीरियसली। इन अ वे कोरोना इज लाइक योर स्पाउस, इनिशियली यू ट्राई टू कंट्रोल इट, आप उसको कंट्रोल करने की ट्राई करते हो, देन यू रियलाइज यू कांट, आप अपनी स्पाउस को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हो, देन यू लर्न टू लिव विथ इट, ओके। सो ये हो गया मेरे बहुत सारे जो मेरे पास पिक्चर्स आए। फिर इनमें से थोड़ा जब मुझे टैग किया गया था वो पिक्चर्स को मैंने थोड़ा इधर उधर स्क्रॉल किया तो मुझे एक टॉपिक मिला जो मुझे लगा कि आज के लिए अच्छा हो सकता है। ऑलरेडी 15 मिनट में ले चुका हूँ, ट्राई करते हैं कि जितना फास्ट मैं रैप कर सकूँ, क्योंकि बहुत सारे क्रिटिक्स ने मुझे ये भी बोला है कि मेरे वीडियो बहुत लंबे होते हैं। पर क्या करूँ दोस्त, मेरे वीडियो लंबे इसलिए होते हैं क्योंकि मैं जो भी मन में आता है वो बोलता हूँ। मैं ऐसा कोई टाइम लाइन लेके नहीं चलता हूँ कि भाई मैं इतनी देर में पता खत्म कर दूंगा या कुछ भी कर दूंगा।
By the way, these days I am seeing a lot of people getting famous or maybe aiming at fame by abusive videos. लोग 40-40 मिनट के abusive videos बना रहे हैं और उनके मिलियन फॉलोअर्स हैं एंड पीपल आर एक्चुअली एंजॉइंग इट, और वो पूरे वीडियो में कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ गाली गलौज कर रहा है। लोग जो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं वो जानते हैं कि मैं एक भी सेंटेंस गाली के बिना नहीं बोल सकता हूँ, और अभी मैं 15 मिनट से, और मैंने कितने सारे वीडियोस बनाए उनमें भी मैंने एक भी गाली यूज नहीं की है, तो भी लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बिकॉज लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना और अपना काम है इग्नोर करना। दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो अभी कोई यूट्यूब और टिकटॉकर्स का, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉकर्स का ट्रेंड चल रहा है, एंड आई एम डैम श्योर कि ये सारा स्क्रिप्टेड होता है, क्योंकि दोनों तरफ से गालियां आ रही हैं और फिर थोड़े दिन बाद वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा और दोनों के फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। हालांकि अभी भी उनके मिलियन फॉलोअर्स हैं, मिलियंस फॉलोअर हैं। चलो अच्छी बात है। तो मैं ऐसा बिलीव करता हूं कि देयर आर लॉट ऑफ वेज टू create a hype or getting famous on social media. It's just that you should have some work ethic and take the right approach and not just keep on abusing everyone around. अभी अगर मुझे चांस दिया जाए तो मैं ऐसी ऐसी गाली बोल सकता हूँ जो शायद आपने सुनी भी ना हो और आपको भी मजा आएगा ये वो, पर फिर उसमें क्या है, वो सब दैट इज ऑल वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज दैट इज नॉट स्प्रेडिंग एनी पॉजिटिविटी. इट माइट बी ह्यूमरस फॉर अ मिनट और टू, बट देन आज मुझे किसी ने वो वीडियो दिखाया और वो वीडियो कुछ 15 मिनट का था, मैं 2 मिनट में ही पक गया क्योंकि वो गाली गलौज ही किया जा रहा था और वो बंदे के मिलियन फॉलोअर्स हैं. चलो एनीवे, दैट्स नॉट माय टॉपिक. सो माय टॉपिक फॉर टुडे इज few ways to make a great today. Few ways to make a great today. मतलब अगर आप ये स्टेप्स थोड़े से फॉलो करोगे तो आज का दिन आपका अच्छा होगा. रोज फॉलो करोगे तो रोज अच्छे होंगे. चलो बढ़िया है. तो ये सिर्फ लॉकडाउन के लिए नहीं है, मेरे सारे वीडियोस की तरह ये भी सिर्फ लॉकडाउन के लिए नहीं है, पूरी लाइफ के लिए है. सो पहला पॉइंट है, मैंने बोला हुआ है ऑलरेडी, इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुई है, ग्रेटिट्यूड. रिमेंबर, जब भी आप सुबह पहले उठते हो, आप ऑलवेज आस्क योरसेल्फ व्हाट आर यू थैंकफुल फॉर. अभी यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि आस्क योरसेल्फ व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट यू आर थैंकफुल फॉर. उनको लिस्ट डाउन कीजिए, बिकॉज दैट इज गोना हेल्प यू एंड योर माइंड टू बी ग्रेटफुल फॉर थिंग्स विच हेल्प यू एनकाउंटर द नेक्स्ट चैलेंज. मतलब आप ऐसा ही सोचते रहोगे कि यार ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास नहीं है, मेरे पास वो होता तो अच्छा होता. उससे अच्छा आप ये बोलो कि थैंक गॉड मेरे पास ये तो है, थैंक गॉड मेरे पास वो तो है. जैसे अभी मेरे घर पे जो टीवी है उसमें वाईफाई नहीं है, तो मैं उसमें ये कोई भी हॉटस्पॉट है, फिर अपना अमेजॉन प्राइम है, नेटफ्लिक्स, वो नहीं देख सकता. मेरा लैपटॉप भी बिगड़ा हुआ है, लेकिन मेरे पास मोबाइल तो है, तो थैंक गॉड मेरे पास मोबाइल तो है, अच्छी स्क्रीन वाला है उसमें, तो मैं देख सकता हूँ. सो दैट वे be grateful for what you have and you'll automatically enjoy. बहुत सारे लोग, people are shocked that I'm watching 1 or 2 movies every day on my mobile. It's okay, I'm happy with it. That's more than important. So always be grateful. Next thing is positive energy. जो अभी मैंने आगे ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि always try to spread positivity, always try to spread good energy. मैं तो ये कोविड के सारे एप्स वो भी सब मैंने बंद कर दिया. मैं देखता भी नहीं हूँ कि कितना नंबर बढ़ रहा है, कितना नंबर कम हो रहा है. कभी वीक में एक बार किसी ने बोला ओ ये हो गया, जैसे रशिया अभी 2 दिन में इतना ऊपर आ गया, 3rd स्पॉट पे आ गया तो वर्ल्ड में, तो वो मैंने देख लिया. और वैसे मैं वो देखता नहीं हूँ. मैं सिर्फ अच्छी चीज़ें और जो चीज़ें मुझे हंसाती हैं, जो कोविड से रिलेटेड नहीं है, वही देखता हूँ और खुश रहता हूँ. ठीक है. सो दैट वे यू कैन ऑल्सो स्प्रेड पॉजिटिविटी, यू कैन टॉक पॉजिटिव टू एवरीवन अराउंड सो दैट पॉजिटिविटी स्प्रेड. और जो कोई स्प्रेड करता है, जो मेरे ग्रुप्स में आते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत सारे ग्रुप्स में हूँ व्हाट्सएप के, तो वहाँ पे बहुत सारे मैसेज, तो उनको मैं बोलता हूँ क्यों ऐसा स्प्रेड कर रहे हो, अननेसेसरली तुम भी स्ट्रेस ले रहे हो, दूसरों का स्ट्रेस भी बढ़ा रहे हो. थर्ड थिंग इज जेनरोसिटी. इसके ऊपर मैंने कभी ज्यादा किसी के मतलब ज्यादा बात नहीं की है, आज थोड़ा सा बोल दूंगा. इसमें ऐसा बोलते हैं जेनरोसिटी इज यू गेट व्हाट यू गिव. सो जैसे मैंने बोला, अगर मैं पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहा हूँ तो मुझे ऑलवेज पॉजिटिविटी ही दिखेगी. अभी मैं बहुत सारे, नथिंग अगेंस्ट देम, बहुत सारे लोग सोशल वर्क कर रहे हैं और वो लोग बहुत सारा अपने सोशल मीडिया पे प्रमोट भी कर रहे हैं.
तो उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं प्रमोट करूंगा या मैं प्रमोट करूंगी तो लोग उसे देखेंगे और भी वो भी सोशल वर्क करेंगे. दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट. आई टेक इट दैट वे ऑल्सो, बट देर इज अनदर साइड टू इट ऑल्सो. लोग बोलते हैं कि भाई तू इतना सब कर रहा है तो दिखा क्यों रहा है. दोनों के अपने अपने सही रास्ते हैं. बट मैं भी बहुत सारा छोटा मोटा काम करता रहता हूँ यहाँ पे. जैसे अगर मैं जाता हूँ एंड इफ आई सी सम डॉग ट्राइंग टू लुक फॉर फूड, मैं उन्हीं कुत्तों को खिलाता हूँ जो इधर उधर मुंह मार रहे होते हैं खाने की वजह से. तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग नखरे नहीं करते हैं. बहुत सारे कुत्तों को क्या आप लोग खिलाने जाओगे तो वो लोग नखरे करेंगे. आप बिस्किट डालोगे वो नहीं खाएंगे, आप दूध रखोगे वो नहीं करेंगे. ये मैं कर चुका हूँ इसलिए बोल रहा हूँ. नथिंग अगेंस्ट द डॉग, दे आर अ वेरी काइंड एनिमल. बट जो भी क्योंकि अभी कुछ खाना वाना कोई डाल नहीं रहा है किधर कचरे के डब्बे में ये वो वो लोग बहुत बेचारे भूखे यहाँ वहाँ घूमते रहते. तो जो भी ऐसे मुंह मार होता है आप उनको भी खिलाओगे या उनको पानी पिलाओगे, उनको दूध पिलाओगे तो तुरंत ही खा लेंगे. और वो जो दुआ आपको लगेगी इसका कोई कंपैरिजन नहीं है. वैसे ही सेम चीज़ है अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हो ग्रोसरी लेने या किसी लेने के लिए, कोई बेचारा बंदा आपको बोल रहा है कि भाई कोई, जैसे अभी 1-2 दिन पहले मुझे एक बूढ़ी सी आंटी थी जो 2-3 थैली लेके रास्ते पे बैठी हुई थी और बेचारे से हेल्प के लिए सबको बोल रही थी. बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक नो वन वॉज ट्राइंग टू हेल्प हर. मैं एक्टिवा पे था, मैंने उनको पीछे बिठाया, उनका सामान लिया और वो मेरे घर के पास ही रह रही थी तो उनको ड्रॉप कर दिया. वो जो दुआ मिलेगी आपको वो कोई पैसा या कोई चीज नहीं खरीद सकती. अभी वो टाइम पे मैं अगर सेल्फी खींचता कि मैं इनको पीछे बिठा के ले जा रहा हूँ तो हाउ डज इट मेक सेंस. इट डजंट मेक सेंस टू मी, बट आई एम जस्ट शेयरिंग इट हियर बिकॉज आई फील दैट दिस काइंड ऑफ स्मॉल जेस्चर्स ऑफ हेल्प कैन बी वेरी हेल्पफुल. जरूरी नहीं है कि कहीं जाके आप गरीबों को ही खिलाओ. आपके घर के आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको आप हेल्प कर सकते हो अलग अलग तरीके से. उनके लिए ग्रोसरीज लाके या उनके साथ थोड़ा खाना शेयर करके या उनको थोड़ी मॉनिटरी हेल्प करके. क्योंकि आप आज जो उनको दोगे वो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद शायद उनके पास से ना आए, लेकिन वो ऊपर वाला आपको जरूर वापस देगा. सो मेक श्योर दैट यू give without expecting anything in return and you will get much more in return than what you give. उसके बाद आता है म्यूजिक is one of my favorite stress buster. और ये जो मेरे AirPods है, these are AirPods 2, I am so very grateful for them because they have a system called I forgot right now. So it completely switches off the world because मेरा जो यहाँ पे पिक्चर है वो भी ऐसा ही बोल रहा है, हेडफोन्स ऑन वर्ल्ड ऑफ. और जब ये होता है तब मैं वर्कआउट भी बहुत अच्छी तरह कर सकता हूँ, फोकस भी बहुत अच्छी तरह कर सकता हूँ. एंड आई लव दिस एयरपॉड्स बिकॉज इसमें सिर्फ मुझे वही सुनाई देता है जो मैं सुनना चाहता हूँ. सो यू कैन यूज म्यूजिक एज अ मीडियम टू बर्स्ट योर स्ट्रेस. एंड रिमेंबर, म्यूजिक elevates your mood and music also allows you to tune your brains. So hear good music. मैं अलग अलग किस्म के म्यूजिक सुनता हूँ. मैं मोटिवेशनल हिंदी म्यूजिक सुनता हूँ, मैं मोटिवेशनल इंग्लिश म्यूजिक सुनता हूँ, मैं वर्कआउट सुनता हूँ, मैं रॉक सुनता हूँ, कभी कभार मैं लव सॉन्ग सुनता हूँ, कभी कभार मैं सैड सॉन्ग सुनता हूँ. मैं सारा किस्म का म्यूजिक सुनता हूँ. जब भी मुझे जो करना है, मतलब जब भी मुझे जो मूड होता है, मैं रैप भी सुनता हूँ. मैं सब अलग अलग तरीके के म्यूजिक सुनता हूँ. तो जैसा मेरा मूड होता है वो मूड के हिसाब से मैं म्यूजिक सुन लेता हूँ. उसके बाद आता है माई मोस्ट फेवरेट पॉइंट, एक्सरसाइज इज अ नेचुरल हाई. मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं व्हाट इज योर हाई इन लाइफ. सो आई ऑलवेज टेल देम एक्सरसाइज एंड मनी आर माई 2 हाई. एक्सरसाइज वुड बी मोर, क्योंकि एक्सरसाइज से जो हाई मिलती है, द एंडोर्फिन्स इन योर बॉडी दैट आर रिलीज फ्रॉम योर ब्रेन मेक्स यू फील so गुड कि आप कितना भी टायर्ड हो, आप कितने भी सैड हो, आप कितने भी स्ट्रेस्ड आउट हो, वो सब आपको भुला देगा और यू विल बी फिल्ड विद अ कंप्लीटली डिफरेंट एनर्जी. आज मेरा वर्कआउट बहुत सही हुआ था, इसकी वजह से मेरा मूड भी कंप्लीटली एकदम ही अलग ही मूड है मेरा. सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू एक्सरसाइज. One of the next point is laughter. Always try to spread laughter. मैं दिन में ऐसा ट्राई करता हूँ कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते हैं, क्योंकि मैं वही सब ढूंढता रहता हूँ ना. तो मैं बोल रहा हूँ ना, जो आप ढूंढोगे वही आपको मिलेगा. तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते हैं जो बहुत सारे फनी होते हैं. उनको एडल्ट वीडियोस भी बोल सकते हैं, कोई नॉर्मल मतलब अच्छे वाले हो जो चिल्ड्रन भी देख सकते हैं. मैं उनको
आगे सेंड करता हूँ। तो ये कोविड वायरस के पैनिक की स्प्रेड करने से तो अच्छा है कि आप ऐसे सब वीडियोस शेयर करो जिसमें बहुत सारा हंसी हो। छोटे छोटे वीडियोस होते हैं जिसमें बहुत मजा आता है देखने में, 15-20 सेकंड के, लेकिन वो इतना हंसाते हैं। और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस होते हैं जो अपने दोस्तों को भेजता रहता हूँ, और वो लोग भी इतने हंसते हैं क्योंकि वो मोमेंट्स जो है ना, वो आप मतलब you cannot beat those small jokes, and try and crack jokes more with your friends and family so that there is more laughter all around. और आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरा वो है मेडिटेशन। गेट पर्सपेक्टिव। सो मैं ऐसा सोचता हूँ, जैसे मैंने बोला कि अपने आप से आपको बात करनी चाहिए, सो दिस इज द राइट टाइम, मेडिटेट। आप एक जगह पे, और मेडिटेट का मीनिंग ये नहीं है ऐसे बैठ गए और ऐसा हाथ रख दिया। You can meditate with your eyes open. You can meditate by talking to you. I believe meditation is talking to your own self, talking to your within, going. You cannot go out, so you go in, is what I believe. So, meditation is a form of self motivation kind of thing. So, आप अपने self से कुछ अच्छी बातें कीजिए, कुछ अच्छा बताइए अपने आप को, कुछ नया बताइए अपने आप को, and tell yourself that we are going to get through this because we are in this together. इसके बाद आता है spend your time with your loved ones. Maybe it might be your spouse, it might be your children, it might be your pets, it might be your grandfather, grandmother, or it can be anyone. Spend time with them because you don't know when it's going to be your last moment in this world. So spend time with them, and you can give them the gift. The most precious gift in this world is your time right now. So spend time with your loved ones, and they are going to appreciate it more than any other gift in the world. Your time is the most valuable thing that you can give to someone, because ये जो time अभी मैंने ये जो इतने मिनट स्पेंड किए हैं और ये जो टाइम आपने स्पेंड किया है इसको देखने के लिए, ये आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा। 16 मई, ये जितने बजे आप ये वीडियो देखोगे, या 17 में, या जितने भी बजे आप ये वीडियो देखोगे, वो सारा टाइम आपने मुझे दिया है। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट, बिकॉज ये टाइम आप किसी और को अपनी लाइफ में कभी नहीं दे पाओगे। और मैंने भी ये वीडियो बनाते हुए ये टाइम जब जिसको दिया है, वो टाइम मैं किसी और को कभी नहीं दे पाऊंगा। And last but not the least is the chilled shower, which is one of my favorite point, because मैं वीक में 2 या 3 बार, अभी लॉकडाउन के टाइम, अभी गर्मी की सीजन भी है, तो वीक में 2 या 3 बार वेरी चिल्ड शावर लेता हूँ। फ्रीजर में बहुत सारा आइस रख देता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे ऐसे शावर में चिलनेस लाने की तो कोई तरीका नहीं है, तो फ्रीजर में बहुत सारा आइस रख देता हूँ। अपना शावर वार्म या हॉट वाटर से चालू करता हूँ, एंड आई एंड इट विद अ chilled water pouring all over my body, and trust me, there is no other best feeling. आप वो 5 या 10 मिनट you keep on pouring that chilled water over your body will be completely regenerated, and trust me, there is no better feeling than that. Try this, but उसके बाद प्लीज पूरे बॉडी को बराबर से ड्राई करना, और एसी में मत बैठना उसके 1-2 घंटे तक, क्योंकि you might catch cold, and right now that would be the worst thing. But remember, chilled shower will also increase your immunity. It will increase your tolerance against cold and cough. But जब cold and cough हो तब chilled shower मत लेना, ठीक है? Don't do that. फिर आप मेरे को ब्लेम करोगे कि जैसा सर ने बोला था तो हमने लिया, अभी तो हमको सर्दी जुकाम हो गया। जब आप नॉर्मल कंडीशन में हो तब आप ले सकते हो, जिससे आपका टॉलरेंस अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू बहुत बढ़ेगा. सो योर इम्यूनिटी विल गो हाई. सो again, we end this topic. I would say a last line that every day might not be good, but there is something good in every day. Look for that good in every day and turn that good into a good day. Okay? So you will always find positivity if you look for positivity. You will always seek motivation. You will always find motivation if you seek motivation. You will always find what you are looking for. So find better things. Okay? Remember, we are in this together, and we are gonna get out of this together. We are stronger than we think. More power to all of you. Take care. I'll see you soon again.